کیونکہ وہاں سے فنڈ جو آتی ہے وہاں سے پیسہ آتا ہے, وہاں سے مال آتا ہے, وہ اندر جاتا ہے. تو یہ کیسے بول سکتا ہے جی جنید بھائی, جنید الرحمان جنید بھائی سے السلام علیکم. جی جنید بھائی موقع دے تو میری بات سنیں پلیز ایک منٹ. بات یہ کہ میں نے اس پر یہی بات کروں گا, جو ہے نا جی آپ کہہ رہے کہ ڈیفنس کے جو ہمارا جو پورا ادارہ ہے ان کا کوئی بندہ بات کر لے اس ٹاپک پر زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یا جنید صاحب بات اچھی کر سکتے ہیں, یا کیونکہ علماء کو ویری سوری ان چیزوں کا نہیں پتا, نہ ہی ان کو ایسا پتا ہے. باقی ہم ایران کے ساتھ, ہم تمام کنٹریز اسلامک کنٹری کے ساتھ ہیں, لیکن یہ کام نہیں ہونا چاہیے, بس میری اتنی ورڈکٹ ہے. باقی جنید بھائی کو پلیز ہم ویلکم کرتے ہیں, ابھی میں نے فون بھی کیا تھا ان کو, اور جنید بھائی کی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم جنید بھائی, بات کریں پلیز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت شکر گزار ہوں ریحان صاحب کا, عماد الاسلام صاحب کا, کہ انہوں نے مجھے یہاں پر موقع دیا کہ یہ جو حساس معاملہ ہوا ہے خاص طور پر, اور پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات میں کشیدگی آئی ہے اور فضا میں گرمی ہے, آگ ہے, اور دونوں ممالک کے جو وزارت خارجہ ہیں اور دفتر خارجہ میں جو گرما گرمی پائی گئی ہے, جو اب تک ہمارے پاس جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے اس وقت ظاہر سی بات ہے اب ایرانی جو بارڈرز ہیں انہیں وقتی طور پر سیل کر دیا گیا ہے, اور یہ معاملہ بلوچستان کے واقع میں ہوا, اور پاکستان نے اس کا ریبٹل کیا. سیستان کا جو ایریا ہے ایران کا, وہاں جو دہشت گردوں کو انہوں نے مارا ہے, جو فضائی حملہ کیا ہے. دیکھیں یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے. غالباً میں سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہوئی تھی, وہ وائرل یہ ہوئی تھی, وہ تصویر یہ وائرل ہوئی تھی کہ صبح جو ہے غالباً ان کے وزارت کے کسی صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی, اور شام میں پھر ایران نے حملہ کیا, اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پاکستان کی حدود کے اندر حملہ ہوا ہے, اور پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے, جو کہ انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. دیکھیں پوری دنیا میں ایک ڈسپلن بنا ہوا ہے, سیکورٹی ڈسپلن بنا ہوا ہے, کہ آپ کسی بھی ملک کے جو اندرونی اور داخلی معاملات ہیں اس کے اندر آپ مداخلت نہیں کر سکتے. چاہے آپ فضائی حملے کی بات کریں, چاہے آپ آرمی ایکشن کی بات کریں, چاہے آپ بحری نیول فورسز کی بات کریں, آپ کسی ملک کے اندر اس کی اجازت کے بغیر آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. آپ بے شک آپ کو دہشت گردی کا خدشہ ہو, بے شک آپ کو کسی قسم کی کوئی خطرات لاحق ہو. دیکھیں اصول یہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر اگر ایران کو یہ معاملہ پتا تھا کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی کا معاملہ ہے, یا پاکستان کے اندر بلوچستان کے علاقے میں انہیں کوئی دہشت گردی کا معاملہ نظر آ رہا ہے, تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے, وزارت خارجہ سے کانٹیکٹ کرتے, وزارت خارجہ سے وہ بات کرتے, پرائم منسٹر سے وہ بات کرتے کہ ایسے ایسے معاملات ہیں, اور وہ جناب پاکستان کی ISI, پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ یہ آپریشن سر انجام دیتے. یہ ایسا نہیں کہ آپ کسی بھی ملک کی فضائی حدود کے اندر داخل ہو جائیں, وہاں بمبارڈمنٹ شروع کر دیں اور کہہ دیں کہ دہشت گردی کا یہ معاملہ, یہ معاملات بہت حساس ہوتے ہیں, کوئی بھی ملک اجازت نہیں دے گا. تو ظاہر سی بات ہے پاکستان تو خود تقریباً میں یہ دیکھ رہا ہوں غالباً 2001 سے جب سے ہم امریکہ وار کے اندر انوالو ہوئے ہیں, اور جب سے اسامہ بن لادن کا معاملہ سٹارٹ ہوا ہے, اور افغانستان کی جنگ میں ہم جو ہے امریکہ کے ساتھ جو انوالو ہوئے ہیں جنرل مشرف کے دور سے, وہ آج تک ہم اس کے معاملات بھگت رہے ہیں. ہمارا وزیرستان کا جو علاقہ ہے, شمالی وزیرستان کا علاقہ, وہ انسیکیور ہے. ہمارا جو ہے بلوچستان کا جو پورا علاقہ ہے وہ انسیکیور ہے. اسی طرح ہمارا جو شہر کراچی تھا, وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی, وہاں پر ہم نے اس کراچی شہر کے اندر کئی سالوں تک طالبانائزیشن دیکھی ہے, ہم نے یہ سارے معاملات دیکھے ہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف تقریباً اندازہ لگائیے 2001 سے لڑ رہا ہے. ہمارے کئی ہزاروں فوجی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. تو ہم دہشت گردی کی لپیٹ کے اندر موجود ہیں, اور ہم نے امریکہ کا ساتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ ہم امریکہ کی جنگ کے اندر انوالو ہو رہے ہیں, وہ ہم نے اس لیے ساتھ دیا تھا امریکہ کا, یا جنرل مشرف صاحب نے اس لیے ساتھ دیا تھا کہ ہمیں سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ خطرہ یہ تھا کہ جناب موصوف جو ہمارے سابق جو جنرل ضیاء تھے, کہ جب روس اور افغانستان کی جنگ ہوئی تھی تو ہم نے افغانی کیمپس یہاں پہ قائم کیے تھے, اور ہم نے افغانیوں کو جو ہے وہ پناہ دی تھی. لیکن بعد میں اس کا ریبٹل یہ ہوا کہ انہیں افغانیوں میں سے بہت سے دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پنپے, اور خاص طور پر جو آپ کا فرنٹیئر کا ایریا ہے وہاں پر بڑی بڑی جہادی اور دہشت گردی والی تنظیمیں قائم ہوئی, اور اس تنظیموں سے جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہوا. مساجد پہ حملے ہوئے, آپ اندازہ لگائیے مسلکی فسادات ہوئے, اور مسجدوں میں بمبارڈمنٹ ہوئی. کبھی شیعہ امام بارگاہ کے اندر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے, کبھی سنی مسجد کے اندر بم دھماکہ ہو رہا ہے, اور یہ دہشت گردی ہم فیس کر رہے ہیں. اور اسی طرح آپ اندازہ لگائیے کہ جب امریکہ نے جو ہے 2001 میں حملہ کیا, تو اس وقت بھی ظاہر سی بات ہے ہم نے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم اس جنگ میں انوالو ہوئے. حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں انوالو نہیں ہونا ہے, کیونکہ اگر ہم امریکہ کی جنگ کے اندر انوالو ہوں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم مزید دہشت گردی کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے اس کے معاملات میں انوالو ہو جائیں گے, اور مزید ہم جو ہے وہ طالبان کی جنگ کے اندر پاکستان کو فیوچر کے اندر بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو اس کا بہترین عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ آپ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مذاکرات کریں. دیکھیں
आर्मी ने जब जब ऑपरेशन किया जिन मामलात में, ठीक है, दहशतगर्द मारे गए, लेकिन वहां पर मजीद जो है चाहे आप बात कर लीजिए शुमाली बलूचिस्तान के एरिया की बात कर लें, फ्रंटियर के एरिया की बात करें, वहां के लोगों के दिलों में जो है वो पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हुई। तो मैं ये समझता हूं, मैं इस बात को इंश्योर करता हूं कि हमें जो है इस वक्त जो सबसे बेहतरीन जो रास्ता है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बेहतरीन मामला है वो है मुज़ाकरात, कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात के अंदर इन्वॉल्व हों। देखिए यहाँ पे एक बात जो मैं हमेशा समझाना चाहूंगा, ये बात आज मैं अपने बहुत सारे अहले तशय्युई दोस्तों को भी समझा रहा था कि देखिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर पाकिस्तान और ईरान की खुदा न खास्ता अल्लाह न करे जंग चढ़ जाती है तो पाकिस्तान के शिया ने अली का रद्द अमल क्या होगा, कि आया वो ईरान का साथ देंगे या पाकिस्तान का साथ देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुक़द्दसात हैं, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का वहाँ पे मज़ार है, वहाँ पे बीबी मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार है, वहाँ पे कई सैयदजादों के आले रसूल के मज़ारात हैं। तो जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो दो मुल्कों की जंग नहीं देखेंगे, वो तो ये देखेंगे कि जनाब अगर ईरान पे पाकिस्तान की तरफ से हमला हो रहा है तो बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि यार वहां पे तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं, आले रसूल की औलादें हैं, तो दरअसल वो हमला जो वो तसव्वुर करेंगे वो अहलुल बैत पर तसव्वुर करेंगे, जबकि मामला कुछ और है, मामला तो दहशतगर्दी का है। तो इस मामले में हो सकता है अल्लाह न करे कि आधा तीतर आधा पटेर हो सकता है कि पाकिस्तान की जो शिया है वो जो है वो डिवाइड हो जाए, वो कहेंगे हम तो ईरान का साथ दे रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर बहुत बुरे मामला पेश आ सकते हैं, शिया सुन्नी फसादात बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ईरानी रेवोल्यूशन के बाद, इमाम खोमैनी रेवोल्यूशन के बाद शियों की, अहले तशय्युई भाइयों की जो सबसे बड़ी पनाहगाह है वो ईरान है। आज पूरी दुनिया के अंदर अहले तशय्युई इस बात को मानते हैं कि हमारी जो तहफ़्फ़ुज़गाह है, हमारी जो पनाहगाह है, हमारी जो बुनियादी जो सिस्टमेटिक निज़ाम है वो ईरान है। और वो खुमैनी साहब, इमाम खुमैनी साहब जो रेवोल्यूशन लेके आए और उन्होंने रजा शाह पहलवी की हुकूमत को खत्म किया और वहां पर ईरानी रेवोल्यूशन आया और उन्होंने शिया हुकूमत वहां पर कायम की, तो पूरी दुनिया के शिया ये बात मानते हैं कि वहां पर अहले तशय्युओं की जो पनाहगाह है वो ईरान है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बहुत खतरनाक किस्म के हालात जो है वो पैदा हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अहले तशय्युई भाई ईरान से भी मोहब्बत करते हैं, इराक से भी मोहब्बत करते हैं। ये मामला सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा बल्कि इराक तक जाएगा, क्योंकि इराक में भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम का मज़ार है और इमाम हसन का, इमाम हुसैन का है, हज़रत अब्बास का है। तो ये मामलात बड़े सेंसिटिव हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसका सबसे बेहतरीन जो तरीका है कि दोनों मुल्क के वज़ारत ख़ारजा एक दफा फिर बैठे, दोनों मुल्क के वज़ाए आज़म एक दफा बैठे, मुज़ाकरात करें और मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें। बनिस्बत ये कि एक दूसरे पर हमला करें, ये हमला करना ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि ईरान की तरफ से भी मामला गलत हुआ है और रीबटल के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से भी ये मामला जो है वो गर्मा गर्मी का मेरे मुताबिक गलत हुआ है। शायद मैं अपनी तस्वीर में गलत हूँ, लेकिन एक दूसरे पर हमला करना ये दुश्मनी को बढ़ा रहा है। हम चाहते हैं, मैं ये समझता हूं कि मैं अपने मुल्क की आर्मी को एज अ जर्नलिस्ट, एज अ स्पीकर एक अच्छी गाइडलाइंस दूंगा अपनी हुकूमत को कि खुदारा मुज़ाकरात की तरफ आइए। इमरान खान साहब 20 साल 22 साल चीख के ये बात कह रहे थे इमरान खान साहब कि खुदारा जो है अगर आपको दहशतगर्दी से बाहर आना है तो आपको तालिबान से मुज़ाकरात करने होंगे, आप मुज़ाकरात ही सबसे बेहतरीन है। अगर आपको कश्मीर का मसला हल करना है तो मुज़ाकरात के जरिए हल करना है, टेबल टॉक के जरिए मसला हल करना है। अगर आप पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं तो खुदारा आइए टेबल टॉक करें। इमरान खान साहब चीख के ये बात कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल है, टेबल टॉक होगी, दोनों मुल्क के वज़राए खारजा, वज़राए आज़म बैठेंगे, आपस में बात करेंगे, इशूज रिजॉल्व करेंगे। क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है, ईरान भी ये बात जानता है कि पाकिस्तान के जो करोड़ों शिया हैं वो हर साल ईरान और इराक ज़ियारतों पे जाते हैं और पाकिस्तान से एक भारी करोड़ों अरबों रुपए का जो रेवेन्यू है वो ईरान को मिलता है। तो ईरान के पाकिस्तान से मफादात है और ईरान की कई चीजें जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होकर आती हैं और इससे ईरान को करोड़ों अरबों रुपए का फायदा होता है। तो मैं समझता हूं कि ईरान इस मामले को समझेगा। पाकिस्तान ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्टर है, क्योंकि बहुत सारी इंपोर्टेड चीजें, चाहे आप चॉकलेट्स की मिसाल ले लें, बिस्किट्स की मिसाल ले लें, चाहे आप वहां की मुकद्दसात की मिसाल ले लें, वहां की तबर्रुकात की मिसाल ले लें, वहां की अशिया की मिसाल ले लें, डेली लाइफ प्रोडक्ट्स की बात कर लें और वहां के तेल की बात कर लें, ये सारी चीजें पाकिस्तान में आती हैं। तो ईरान का पाकिस्तान से एक मफाद है, ईरान से पाकिस्तान से ईरान को तिजारती तौर पर फायदा है। बेशक अमेरिका की जो है वो पाबंदियां ईरान पर है, दुनिया जहां की पाबंदियां ईरान पर, लेकिन ईरान का जो अनऑफिशियल माल जो है वो इंपोर्ट होकर पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खरीदार है, बहुत बड़ा खरीदार है। तो मैं ये समझता हूं कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं वो इंशाल्लाह बहाल होंगे और वो सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए। देखिए ये बात हमेशा याद रखिएगा, इमरान खान साहब जो है वो ये बात हमेशा कहते थे कि मुज़ाकरात के बगैर किसी किस्म का जो है और इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर आपने मुज़ाकरात नहीं किए और आप इसी तरह जो है वो ईरान के साथ जंग में इन्वॉल्व हो गए तो देखिए पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान क्या है। आज पाकिस्तान के बराबर में मशरिक में सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है भारत। आप उससे ऊपर जाएं, बांग्लादेश से आपके ताल्लुकात खराब हैं। बांग्लादेश आज बंगाली आपका मुसलमान है। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, सुकूत ढाका हुआ था और कितनी बड़ी खून की होली खेली गई थी, लाखों मुसलमानों का कत्ल हुआ था। तो आज जो है
बांग्लादेश जो है वो आपके साथ नहीं खड़ा। बांग्लादेश ने आज अपना निजाम, अपना सिस्टम खुद बनाया है। आज बांग्लादेशी टका जो है वो आपकी करेंसी से कई गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा हो गया, 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो गया। आज इंडियन रुपया जो है वो 3.5 रुपया आपसे ज्यादा है। इसी तरह अगर आप मगरब की तरफ आते हैं तो अफगानिस्तान से भी आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है। आप जो है वो तालिबान के साथ भी, तालिबान हुकूमत जो नहीं कायम हुई है इस वक्त, वहां पर भी आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं है। और इसी तरह आपने ईरान से भी अपने ताल्लुकात खराब कर लिए। तो खुदारा चारों तरफ आपने अपने दुश्मन बना लिए। आपके सीधे हाथ के भी दुश्मन बैठे, उल्टे हाथ के भी दुश्मन बैठे। तो खुदारा पाकिस्तान की वजारत खारजा, पाकिस्तान की हुकूमत और मैं पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से बारहा अपील करता हूं कि उठें, मुज़ाकरात करें। यही बात इमरान खान साहब कहते थे, कब तक हम इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी ये बात जानती है कि हम हालत जंग में पहले से मौजूद हैं। हम मजीद जंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हमारे पास हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। हम IMF के कशकोल में डूबे हुए हैं। तो अल्लाह के वास्ते हमें इस मुल्क को बचाना है। ये मुल्क लाखों करोड़ों लोगों की कुर्बानियों से हासिल हुआ है। महंगाई कहां पहुंच चुकी है, हम कितने पीछे हो चुके हैं रिसर्च में, डेवलपमेंट में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में। हम ये मुल्क जो है वो लिसानी फसादात का शिकार है। ये मुल्क मजहबी इंतशार का शिकार है। यहाँ पर कुफ्र के फतवे लगते हैं, एक दूसरे को जो है वो काफिर के नारे लगते हैं। खुदारा इन चीजों से बाहर आना होगा। हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दुनिया में आगे बढ़ना होगा। हमें अपने खारजी और सिफारती ताल्लुकात को बेहतर बनाना होगा। अल्लाह के वास्ते हमारी हुकूमत होश के नाखुन ले। अल्लाह करे जल्द से जल्द इलेक्शन हो, इस मुल्क में आदिल हुक्मरान आए और इस मुल्क को संभाले, इस मुल्क की महंगाई को खत्म करें और आलम और पूरी दुनिया में एक अच्छे सिफारती ताल्लुकात बनाए, जिससे हमारी ट्रेड, हमारी कॉमर्स, हमारी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पॉजिटिव हो। हम दुनिया में बहुत पीछे रह गए। अल्लाह के वास्ते इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। हमारी जो करेंसी है वो डाउन हो चुकी है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त कई अरब डॉलर का शिकार है। करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त हमें बहुत हसास होना होगा। हम जंग नहीं कर सकते, हमारी पोजीशंस बहुत वीक हैं। तो अल्लाह के वास्ते मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाए और दुश्मनी से बचे। जज़ाकल्लाह।